10 SST is what we're doing. Eco chapter 1 development. Okay, right guys, before we start the chapter, it's a very easy chapter. There's not much conceptual problem in this. There's nothing big to learn in this, but still we can learn a few things. Even if it is not given in the book, I want to give you a background about the development. So how many types of development can be there? Let's start from one side. Achintya, can you tell me just one? So we are talking about a nation. A country needs to have what are the aspects of development in a nation? Achintya. Sir, economic. Okay, so first let us take economic development. Okay, what you have given the second point. I want to talk about that more. You are saying environmental development. What do you understand by environment development, Achintya? Sir, in environmental development, so forest reserves, dam constructions. The dam construction is environmental development, is it? That helps to store water. No. It is the reverse of development. Okay, Raj. Next point. Let's take from you, Viraj. Yes, sir. Sir, afforestation could be one of them. Okay, afforestation can be a part of this. All right. Anything else? प्रथम अंतरिक्ष राजवर्धन क्या हो सकता है और environment development? So suitable climatic conditions for business like cotton, raw material. नहीं वो हम नहीं क्रिएट कर सकते ना. क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे से हम तो नहीं कर सकते. ये तो नेशनल डेवलपमेंट वो है जो हम कर सकते हैं. ह्यूमंस, व्हाट ह्यूमंस कैन डू. Sir, I'm having another point, sir. Yeah, Viraj. Sir, to stop water pollution. ठीक है, पोल्यूशन को अवॉइड करना. ठीक है, वो बाद में आएंगे. और ओके, टेल मी. सो वन आई हैव water cleaning drainage system. या ठीक. ओके, सेकंड इज ओके. एनी अदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट? एनी अदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट? सर, इंफ्रास्ट्रक्चरल. ओके, अभी अचिंत्य बस आपका हो गया, बाकी लोगों से पूछता हूँ. सो नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, अंतरिक्ष आप बताइए कोई डेवलपमेंट. सर, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज. अरे उसका नाम तो बताना पड़ेगा ना यार. तुम तो फिर ऐसा मत शुरू करो ना. फिर बेटर फूड फॉर स्टूडेंट एंड बेटर टीचर्स एंड बेटर बेंचेस एंड बेटर. सर, मैंने बोला बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज. उसको डेवलपमेंट को क्या बोलोगे तुम? व्हाट इज द डेवलपमेंट कॉल्ड? Agricultural development. Okay, so we can put a word for that, agricultural development. Agricultural, ये हो सकता है. इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी फिर. Because there has to be an umbrella for the development. Not हम छोटी छोटी बातों को नहीं बोल सकते. All right. Any other development? प्रथम, रवि, विराज एक मिनट रुकना. बाकी मैं कॉल करता हूँ. अचिंत्य आप भी रुको. कार्तिक सिरोही, राजवर्धन, रवि, प्रथम, सात्विक. तुम लोग बिल्कुल नहीं बोले. हाँ राजवर्धन. So sector development. सेक्टर मतलब? So primary, tertiary and secondary sector development. तो वो इकोनॉमी में आ गया. इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, रवि. Communicational development, I think. हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है कम्युनिकेशन. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आएंगी. कम्युनिकेशन इज वन पार्ट ऑफ इट. वो मैं बताऊंगा अभी क्या क्या आता है. कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आती है. कम्युनिकेशन. हाँ भाई, सात्विक आप बताएं. सर वैसे वो सारे हो तो गए कवर. बहुत सारे बच्चे हुए यार अभी तो. सर नाउ में है. हाँ चिंता. ओके सर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. या प्रथम, एक जस्ट गिव प्रथम अ चांस. ही इज नॉट स्पोकन. या प्रथम. यस सर. So, can you suggest any other type of development? Pratham. Okay, Achintya. No sir, I don't. Sir, human resource development.
For या example, HR डेवलपमेंट, schools, HR better डेवलपमेंट, education हाँ। and healthcare systems. Sir, मैं आज बात करूंगा social उस पर। development. हैं? Social development. Yes, yes, yes. That's an important point. Social development. So shall I? Yeah. Okay, Viraj. Sir, I feel the examples which I'll be mentioning, those will be pretty minor, sir. Shall I? Yeah, go ahead. Yes, sir. So development IT sector, sir, in the armed forces. No. That is called military development. So All right, military sir. as a whole. Military as a Right. whole. Military development. Okay. हो गया. Any other development left out? एक बहुत important development बचा हुआ है. हाँ. Sustainable development. नहीं, वो sustainable development अपने आप में कोई development नहीं है. इट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट. हर एक डेवलपमेंट में आप चाहते हो कि नेचर का इतना अब्यूज ना हो जाए, कि नेचर का नुकसान इतना ना हो जाए कि वापस से हम रिकूप ना कर सकें. वो सस्टेनेबल है. ओके. एनी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बचा हुआ है अभी एक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. देखो चाइना के पास क्या है. चाइना में रोड भी है, कम्युनिकेशन भी है, मिलिट्री भी है, इंडस्ट्री भी है, सब कुछ है. एक डेवलपमेंट उनके पास नहीं है. वो क्या है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट. सर नेशनल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे? चलो नेशनल में तो ये सारे के सारे आ जाएंगे. पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यही होता है. Sir, what about institutional development, sir? पॉलिटिकल डेवलपमेंट. ओके. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आ जाते हैं, डेवलपमेंट तो नहीं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आ जाएंगे, वो मैं बात करूंगा. All right, sir. तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट. सऊदी अरब है, अरब के अंदर जो वहां का क्राउन किंग है मोहम्मद बिन सलमान, MBS कहते हैं उसको. वो जो चाहता वही होता है. चाइना में शी जिनपिंग जो चाहता वही होता है. रशिया में पुतिन जो चाह रहा वही हो रहा है. वहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं, वहां पॉलिटिकल पावर नहीं है वहां के मासेस के पास. उन लोगों को कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ. दे आर इन ए टायरनी, दे आर इन ए ऑटोक्रेटिक रूल. देर आर कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंडिया, UK, where tyranny is not there. Elected government will run the affairs. So this is political development. So I would rate this as number one. Every country must have this. First, this should be first developmental goal. Second developmental goal should be the social development. What does it include? It includes education, medical, social security. That is to say, minimum wages should be there to everyone, right? And religious harmony in the society. Religious harmony. ये बेसिक चीजें हैं जो कि सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है. जिस सोसाइटी में ये नहीं होगी वहां पे फिर आपस में राइट्स होते रहेंगे, मारधाड़ होती रहेगी. दिस इज नंबर 3. ऑलराइट. Number 2. Number 3 is HR. Now that there are countries like Hong Kong and Singapore who did not have any kind of natural resources, they worked on HR, and today they are one of the better countries where people want to live. So this is that ह्यूमन रिसोर्स. सो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पूरा फिर आ जाता है एजुकेशन. नाउ एजुकेशन यहां भी आ रहा है, बट दिस इज द बेसिक एजुकेशन. बेसिक एजुकेशन सबको दो. एंड दिस इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. हर बंदे को आप जॉब के काबिल बना दो, और हाई लेवल का. ये है बेसिक से लेके एडवांस तक. आपके कंट्री के अंदर ही इंजीनियर हो जो कि आपके स्पेस प्रोग्राम पे काम कर सके. सर वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में नहीं आ गया. वो HR की तो बात कर रहा हूं मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट HR ओनली राइट नाउ. बेसिक से लेके एडवांस तक, एडवांस एंड सुपर एडवांस तक. ओके. देयर आफ्टर कम्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट विल कम, इंफ्रा डेवलपमेंट. अब इसके अंदर क्या है, हायरार्की में डाल नहीं सकता कुछ, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इसमें कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं. कम्युनिकेशन में आती हैं रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, फिर कम्युनिकेशन टूल्स, ऑल दिस, योर टेलीफोन्स, इंटरनेट, ये सब आ गया. ठीक है. ये आ जाता है तुम्हारा इंफ्रा डेवलपमेंट के अंदर. क्योंकि जो
फाइबर के वायर ले कर रहे हैं मुकेश अंबानी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन और इंफ्रा डेवलपमेंट। फिर इसके अंदर रोड के साथ साथ ये सब ब्रिज, ये सब डैम भी उसी में आ जाएंगे आगे चल के, ठीक है। अच्छा, फिर ये इकट्ठे होने लगते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर एक और चीज देखा, एक किसी ने बताया था इरिगेशन, तो डैम इधर भी आ जाएगा, इरिगेशन, बेटर सीड्स, better fertilizer and better R&D. Anybody knows the full form of R&D? Antariksh? Sir, resource and development. Research and development. सर Research and development. बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि इन लोगों को अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस बताई जाए कि भैया एग्रीकल्चर ये प्रैक्टिसेस यूज करो तो तुम्हारा अच्छा होएगा। एंड साथ में बेटर मंडी सिस्टम जो है ना, जैसे आज की डेट में हमारा मंडी सिस्टम, तो बेटर मोनेटाइजेशन इज अ वर्ड फॉर दैट, कि आपके एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है उनका मोनेटाइजेशन अच्छे से हो रहा है, उनको अच्छा दाम मिल रहा है। आप ऐसा करो, अपने देश में ऐसे टमाटर बनाओ और ऐसी फैक्ट्रियां लगाओ कि आपके देश की जो टमाटर सॉस है वो पूरे वर्ल्ड में बिके, वो है डेवलपमेंट। ओके, नाउ कम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पूरा क्या क्या जाएगा, यू आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू नाउ इट स्टार्ट्स विद एग्रीकल्चर। सो प्राइमरी के अंदर तुम्हें पता है कौन कौन से होते हैं, एग्री, डेयरी, माइनिंग, फिशिंग, इसको डेवलप करो। दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करो, सेकेंडरी करो, टर्शरी को इंप्रूव करो। एक होता है कोऑर्डिनेट, किसके स्पेलिंग मुझे याद नहीं क्या है, क्वाड कुछ आता है, क्वाड शरी और कुछ समथिंग, जिसके अंदर आता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, सो ये है बेसिकली डेवलपमेंट। अच्छा, फिर डेवलपमेंट के पैरामीटर्स होते हैं, कौन कंट्री कितना डेवलप्ड है उस पर डिपेंड करता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द डेवलपमेंट पैरामीटर्स। किस कंट्री को हम बोल सकते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री कहते हैं कि भाई नहीं है। पैरामीटर, क्योंकि पहले तो GDP पे बहुत जोर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, इट इज द टोटल वैल्यू Of final product. ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ सर ऑल द पीपल, एक साल में ना सर, हाँ, ऑल द पीपल ऑफ द नेशन इन वन फाइनेंशियल ईयर, वन फाइनेंशियल FY। फाइनेंशियल सबको पता है 1 अप्रैल से शुरू होता है इंडिया में और अगले साल के 31 मार्च तक जाता है। ये तो GDP हो गया। एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, GNP। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या आता है कि जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं फॉरेन में, तो GDP प्लस रेमिटेंसेस, जो बाहर से पैसा आता है, जो सऊदी में काम कर रहे हैं, इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं हम टोटल, इसको बोलते हैं। तीसरा है हमारा, एक मिनट, तीसरा हमारा HR इंडेक्स है। HR इंडेक्स के अंदर देखो क्या है, बहुत सारे वो है। पहले तो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि कितने बच्चे पैदा होते ही मर गए 6 महीने के अंदर, IMR। ये कम होना चाहिए। डेवलप कंट्री में बहुत कम होता है, जो डेवलप कंट्री नहीं है उनमें ज्यादा होता है, वहां ज्यादा बच्चे मर जाते हैं। ठीक। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, कितने, अच्छा इसको कैसे नापते हैं कि कितने लोगों के ऊपर, लाइक पर 1000 पीपल हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर, per 1000 people how many hospital beds are there, per 1000 people how many normal doctors are there, per 1000 people how many specialists are there। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पर 1000 में, पर 100 में कितने लोग आपके पास जिनके पास जॉब नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर एक और वर्ड आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई बंदा MBA करके ऑटो चला रहा है, एम्प्लॉयड तो है बट अंडर एम्प्लॉयड है वो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद एजुकेशन स्टैंडर्ड्स,
कितने हायर एजुकेशन है, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है आपके पास, वर्ल्ड लेवल पे आपके कॉलेजेस की क्या रैंकिंग आ रही है एजुकेशन। सर लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ योर कंट्री। ठीक है, ऐसे इंडेक्सेस होते हैं। उसके बाद एक और इंडेक्स होता है, करप्शन इंडेक्स बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। उसमें कि तुम्हारे देश में कितने लोग करप्शन का क्या रेट है। जैसे हमारे इंडिया का 155 या कुछ तो रैंक है उसमें, पाकिस्तान का 161 है, अब हम 131 पे आ गए। तो ये बहुत सारे इंडेक्स हैं। तो भाई डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो डेवलपमेंट बहुत कुछ है, एक कंट्री की डेवलपमेंट। तो जो बड़े बड़े लीडर हैं हमारे, जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इनका यही एजेंडा होता है, होना चाहिए। हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर होना चाहिए। देश की एक गवर्नमेंट का ये एजेंडा होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए डेवलपमेंट करें। ठीक है, मिलिट्री डेवलपमेंट मैंने छोड़ दिया उसमें। मिलिट्री डेवलपमेंट है कि आप लेटेस्ट वेपन्स लेके आए, आपकी आर्मी अच्छे से ट्रेन हो, वर्ल्ड के जो अच्छे से अच्छे आर्मीज हैं उनके साथ उनकी ज्वाइंट ट्रेनिंग्स हो, तो वो है मिलिट्री डेवलपमेंट। फिर एक अच्छा, एक चीज होती है डेवलपमेंट, एक होता है रिफॉर्म। डेवलपमेंट है जो चीज एग्जिस्टिंग है, आपकी कैपेसिटीज को आप बढ़ा रहे हो। रिफॉर्म क्या है, पहले से प्रैक्टिस चल रही है। अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप एजुकेशनल रिफॉर्म मान सकते हो। पहले ये था कि 9th क्लास में आपको साइंस लेनी, अगर मैथ लिया आपने तो साइंस भी लेनी पड़ेगी आपको, उसके बाद केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, और सब ये सब लेना पड़ेगा। या 11th में अगर आपने फिजिक्स लिया तो केमिस्ट्री जरूरी है लेनी, मैथ्स लिया है तो उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री जरूरी है। अब ये चेंज आ रहा है थोड़ा सा इसमें, बोला नहीं मैथ्स ले लिया आपने, मैथ्स लेना, आप कॉमर्स लेना कॉमर्स ले लो, आपको अकाउंट लेना अकाउंट ले लो, हम आपको ही फ्रीडम दे रहे हैं। तो दिस कॉल्ड रिफॉर्म। तो रिफॉर्म एक चीज होती है, डेवलपमेंट अलग चीज होती है, दोनों चीजें। रिफॉर्म का मतलब है कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, आपने उसको इंप्रूव कर दिया। ओके। अब हाँ, कुछ somebody was asking me doubt before I present the notes, you can ask it out. यस सर। सर आई वाज आस्किंग दैट सर कोई एनआरआई अगर सऊदी अरेबिया में है तो वो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा, इंडिया की गवर्नमेंट को देगा देगा? देगा देगा, वहां टैक्स लगेगा उसका, और फिर सर इंडिया में टैक्स लगेगा उसके ऊपर। सर इंडियन गवर्नमेंट को भी सऊदियन लेकिन को भी? हाँ, दोनों को लगेगा, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट उतना नहीं लगाएगी। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या होता है। हर एक कंट्री की देखो, हमारी जो रुपये की वैल्यू होती है ना, उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट होता है। तो अगर रुपये की वैल्यू निकालनी है डॉलर डॉलर के अगेंस्ट में, तो वर्ल्ड की सारी करेंसीज को और वो मेजर किया जाता है। बड़े उसके वैसे प्रोग्राम्स होते हैं, 1 मिनट में वो खोल दो पहले। ओके, उसका ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं, जो कंप्यूटिंग होती है। तो सपोज करो जो कंट्री नेट एक्सपोर्ट करता है, यानी जितना इंपोर्ट कर रहा है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी करेंसी स्ट्रांग होती है, लोग उसकी करेंसी पे डिपेंडेंट है। और जो कंट्री सब कुछ इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कुछ होता नहीं उसका, तो उसकी जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू कम होती है, वीक करेंसी मानी जाती है। हमारे करेंसी बस आईटी की वजह से हम लोग थोड़ा ठीक है, अदरवाइज हम लोगों को जो जिस चीज ने मार रखा है इंडियन रुपी को, वो है इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। हमारा इतना पेट्रोलियम हम इम्पोर्ट करते हैं, तो उस वजह से हमारा नेट, हम वी आर ए नेट इम्पोर्टिंग कंट्री। हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इम्पोर्ट हमारा ज्यादा है। तो हर कंट्री चाहता है उसकी कंट्री दूसरे कंट्री की करेंसियां आए, जब करेंसी आएंगी तो उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमारे पास हमारे हम हमें लोगों को देने इतने, लोगों से हमें आ रहे हैं हमारे पास इतने, हमारे जो रुपये की वैल्यू स्ट्रेंथ होती जाती है, बढ़ती जाती है। उसका एक और पैरामीटर होता है कि आप कितने करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, उससे भी डिपेंडेंट होता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, बट इतना समझना आसान है। हर कंट्री चाहता है कि बाहर की कंट्री से पैसा उसके पास आए, बाहर की कंट्री की करेंसी उसके पास आए। अमेरिका के खूब दबा के डॉलर अगर इंडिया में आ रहे हैं, तो इंडिया की जो रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है। चलो सर अभी थोड़ा या सर अगर इंडिया ऐसा करे कि जो ऑयल इंपोर्ट होता है सर उसका इंपोर्ट रेट बढ़ा दें, और जो पेट्रोलियम हमारे ही उस कंट्री की यूज़ का है उसको रख के जो बचा हुआ पेट्रोलियम है जो हमने एक्स्ट्रा इंपोर्ट कराया है उसको हाई प्राइस में दूसरी कंट्री उसको एक्सपोर्ट कर दें। तो वो कंट्री उससे तो हमसे क्यों लेगा, उससे क्यों नहीं लेगा जिससे हमने इनिशियली लिया है। सपोज हमें ईरान से लिया, वो डायरेक्टली ईरान से लेगा। अरे कौन ऐसा, कौन कंट्री करेगा, समझा, वो डायरेक्टली ईरान से लेगा, बोला तुम चाहे हो वाले बीच में क्या कहाँ रहो। ठीक है, ओके। चलो शुरू करते हैं हम थोड़ा सा रीडिंग पार्ट। एक तरफ से शुरू करते हैं, रवि आपसे शुरू कर रहा हूँ मैं, आप शुरू करो। हाँ, 1 मिनट, लेट मी जस्ट डेवलपमेंट या रवि गो हेड। चैप्टर 1 डेवलपमेंट।
Yes, suggestion. The aspiration of desire of people about how they want to lead their lives are the goal for which they work. When people generate ideas to achieve those goals and to improve their present condition, then development takes place. Meaning of development. Development applies to all around development of a country, such as freedom, uh, participative involvement, economic equality, security, life with dignity, and good standard of living. Different people and different goals. People have different goals due to the development in sometimes contrasting and conflicting. For example, industrialists want big dam for the electricity requirement, but dams displace local community, submerge forest land, and destroy whole ecological setup. So local people want small check dams or tanks. This show the Okay, following but two aspects okay, of development. hold, Ravi. So, Yes. guys, this is very important. See what happens is, uh, the labor or the worker, they may like more social development. They'll say कि हमें ज़्यादा pension दो, हमें ज़्यादा social security दो, हमारा जॉब चला भी जाए तो हमें कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए. इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी पॉकेट से जाना है वो पैसा. वो बोलेगा नहीं नहीं भाई, इन लोगों को इतने घंटे तो काम करना ही चाहिए कम से कम. ओके, सोसाइटी कहेगी नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इनका तुमने तेल निकाल रखा है. तो देयर इज ऑलवेज है ट्रेड ऑफ, बोलते हैं इसको ट्रेड ऑफ. ट्रेड ऑफ क्या होता है कि आप कुछ दे रहे हो और वापसी में कुछ मिल रहा है आपको, उसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ. तो हमेशा गवर्नमेंट्स को अपनी पॉलिसीज बनाते हुए दोनों उसका ध्यान रखना पड़ता है, दोनों साइड का ध्यान रखना पड़ता है. ओके, विराज, प्लीज रीड फ्रॉम पॉइंट नंबर 4. दिस शोज द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स. विराज, विराज कैन यू रीड? विराज है कि नहीं क्लास में? नहीं. ऑल राइट. अंतरिक्ष. सर हाँ, प्रथम आई कम टू यू. Yes, अंतरिक्ष, sir. हाँ पढ़ो यहाँ से Different पॉइंट people नंबर and 4. different goals. This, so point number 4, na? हाँ. This shows the following two aspects of development. First, different persons have different developmental goals. Development for one may not be development for another. It may even be destructive for the other. Okay, so just see that there is always a fight between the two sides or maybe more than one. Environmentalist बोलते हैं कि नहीं नहीं, फॉरेस्ट को बचा के रखना है, पेड़ नहीं कटना चाहिए. गडकरी बोलता है नहीं नहीं, पेड़ काटना पड़ेगा, यहाँ हाईवे बन रहा है लोगों की मदद के लिए, गरीब लोगों को इतना दूर से घूम के आना पड़ता है, हम यहाँ छोटी रोड बना रहे हैं, बिल्कुल सामने आ जाए एकदम सेम टू सेम. इतना पैसा बचेगा, कितना एफर्ट बचेगा. देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट. ओके, कंटिन्यू प्लीज. Income and other goals. Income is considered as the most important component of development as it can buy material goods and services. Apart from income, people also seek things like equal treatment, freedom, security, respect of others, etc. This is because the quality of our life depends on material things like money, facilities, and non material things like good working atmosphere, opportunity to learn, job security, etc. Okay, so basically these are the things that every human being wants. मनी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, उसके बाद अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, बढ़िया क्लाइमेट चाहिए. इसीलिए तुम्हें क्या मिलेगा, जहां जहां बढ़िया क्लाइमेट होता है ना, मसूरी हुआ, शिमला हुआ, दुनिया जाके बस गई वहां पे, वहां रहने की जगह ही नहीं बची. तो एवरीवेयर वेयर एवर थिंग्स आर गुड, पीपल विल रश टू दोज प्लेसेस. मटेरियल गुड्स तो सबको पता है क्या है, सब ऑल द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑल द थिंग्स दैट वी कैन यूज. ओके, प्रथम पॉइंट नंबर 7 ऑनवर्ड्स. yes sir. Sir, can you hear me? या गो अहेड. For development, people look at a mix of goals, and development goals include both economic development and better quality of life. Eighth, national development. The individuals have different goals, and their motive of national development is also likely to be different. Their goals can also be conflicting. Under national development, priority is given to those goals which benefit a large number of people. To choose a fair and just path that benefits a large number of people is required for national development. Okay,
So that's why you have a lot of people, IAS officers, a lot of planners, economists sitting there and planning all the policies कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. Okay, कंटिन्यू करें. कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स. तो मैंने बोला कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम डिसाइड करते हैं. जीडीपी एक हो गया. अच्छा, एक को बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस आउट कर दी वहां पे, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम. एक बंदे की कितनी इनकम. तो नेशनल एवरेज निकाल लेते हैं, जो नेशनल इनकम होती है उसको डिवाइड कर देते हैं कंट्री की Population. पॉपुलेशन से. तो हमारी दिक्कत क्या है, हमारी कंट्री, हमारी तो सारी पॉपुलेशन भरी पड़ी है, तो हमारे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं. अमेरिका में अगर किसी बंदे को $1,000 से कम मिल रहे हैं पर मंथ, उसको बहुत कम माना जाता है, मतलब गरीब हो, वो गरीब है वो. लेकिन उसको इंडिया में कन्वर्ट कर दो 70,000 रुपीज, 75,000 रुपीज अमेरिका के हिसाब से, तो अमेरिका का जो बहुत गरीब इंसान है, हमारे यहाँ तो वो है वेल टू डू है, 70-75 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है पर मंथ, नॉट पर ईयर, पर मंथ. ओके, सो ये अलग, ये पर कैपिटा इनकम के अंदर सबसे बड़ी कहानी ये है. बट दिस इज अ पैरामीटर विच इज अप्लाइड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, रीड. Yes, sir. Comparison through national income. National income is the income of all the residents of the country over a period of time and is also known as total income. Countries with higher total incomes are considered to be developed. Example: USA, UK, Japan, etc. However, this is not a useful measure as countries have different population, and comparing total income will not state the average amount earned by a person. ओके, सो एक मिनट, उसके बाद हम आगे कहाँ जाएंगे. राजवर्धन आप पढ़ो. अब वही पर जीडीपी से तो पता नहीं चल रहा, या जीएनपी से नहीं पता चल रहा कि पर बंदे को कितना पैसा मिल रहा है. तो व्हाट विल डू, नेक्स्ट पैरामीटर विल बी, या ओके, गो अहेड राजवर्धन. So point number 12. पॉइंट नंबर 12. Comparison to per capita income. Per capita income gives better comparison. It is calculated by dividing total income of country by its total population. It is also called average income. World Bank report on per capita income. World Bank publishes world. Yeah, go ahead. Sir, am I audible? Yeah, go ahead, we can hear you. World Bank report on per capita income. World Bank publishes World Development Report uh, every year compare the nation on the basis of per capita income. The bank has classified the countries as follows. Countries with PCI of US dollar 12,056 per annum and above in 2017 are termed as rich countries and are called developed countries, except Middle East countries. Countries with PCI of US dollar 955 less are termed as low income इनकम countries. कंट्री. ओके, आई जस्ट टेल यू द टू रीजंस फॉर दिस. जैसे मैंने बताया, जो कंट्री जहां पे 1,000 के ऊपर है इनकम पर कैपिटा, वो रिच माने गए. जैसे मैंने बताया कि इंडिया में वहां पे फिर अगर 1,000 के नीचे उसको गरीब समझा जाएगा, और 1,000 के ऊपर है वो ठीक है, अमीर है. इंडिया में साला 1,000 वाला बल्ले बल्ले कर रहा है अपनी. और जो कंट्री जिनकी 955 या लेस है, उनको लोग इनकम. मिडिल ईस्ट को इसलिए छोड़ दिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, बिकॉज ऑफ देयर ऑयल सेल ऑफ ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इट इज वेरी हाई. जीडीपी बहुत हाई है उनकी, और बंदे उनके पास कम है, उनकी जो पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो मिसमैच हो जाता है. तो उनको थोड़ा साइड कर दिया, उनके लिए अलग पैरामीटर यूज होता है. दे आर कंसिडर्ड रिच कंट्री, बट रिच कंट्री इन द सेंस नॉट इन द सोशल डेवलपमेंट, बिकॉज वहां पे भी ह्यूमन राइट्स और ये राइट्स ऑफ वुमेन और वो सब तो डाउटफुल है. वहां पे शरिया लॉ चल रहा है कि अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट दो. तो उस वजह से इनको कंट्रीज को थोड़ा सा अलग रखा गया. कंटिन्यू करें. 16 नंबर पॉइंट, राजवर्धन. आफ्टर दैट कार्तिक सिवाई. या In 2017, India's per capita income. So I can't see. Yes, sir, I'm sure. Per capita income was only about US dollar 20 पर एनम. 1,820 per annum. It was हाँ, classified as low middle income country. कंट्री. ओके, तो Income and हमारे other देश में एक मिनट, हमारे देश में क्या था, अराउंड $150 पर बंदे की इनकम थी. तो $150 तुम समझ लो कितना, 12,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ के करीब इनकम मानी जाएगी रुपी टर्म में. ओके, कार्तिक सुरई, यू रीड आफ्टर दैट. अपना अचिंत्य बचे हुए, अभी अचिंत्य बचे हुए. लेट मी सी हु एल्स इज लेफ्ट. Yes, sir. It's income and other criteria. क्राइटेरिया. दोस्तों, कई बार आपको क्राइटेरिया आता है, ION होता है लास्ट में, कहीं लास्ट में A होता है. क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया ये वाला इज प्लूरल. ओके,
Yes, sir. Development of a country should be judged on the basis of Attributes. other attributes based on income. To understand this, a comparative analysis Analysis. of their state example is Of that. थ्री स्टेट्स इज गिवन, हरियाणा, केरला एंड, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट रुकना करते। देखो दोस्तों, क्या क्या पैरामीटर ले लिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैंने बोला कि पर 1000 लाइव बर्थ। देखो लाइव बर्थ भी एक वर्ड होता है, जो बच्चा बॉर्न ही, स्टिल बॉर्न हुआ है, यानी बॉर्न ही वो डेड हुआ है, उसको काउंट नहीं करती गवर्नमेंट अपनी काउंटिंग में। सो 1000 लाइव बॉर्न किड्स हैं, अगले एक साल में कितने उसमें से जिंदा बचेंगे, कितने मर जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है। सो दिस इज वन। इनफैक्ट मतलब कितने कितने खत्म हो जाएंगे। इसमें दिखाया है हरियाणा में 33 पीपल डाई, केरला ओनली 10 किड्स डाई, इन्फेंट डाई, बिहार 38 डाई। देन इज द लिटरेसी रेट, कि पर 100 पीपल में से कितने लोग अब लिटरेसी की क्या है डेफिनेशन, यानी कि एमए बी हो या 10th पास हो, जो भी, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इन हिज नेटिव लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश, नॉट इंग्लिश, नेटिव लैंग्वेज। अगर तमिलनाडु का है, तमिल लैंग्वेज बोल तो सकता ही है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसको लिटरेसी बोलते हैं। सो वो हो गया लिटरेसी, ये दे दिया कि भाई 100 में से इतने इतने लोग पढ़े लिखे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, ये रेशियो है कि सेकेंडरी स्टेज के बच्चे, यानी कि 8th, 9th और 10th की क्लासेस कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं। 100 क्लासेस हुई हैं तो कितनी क्लासेस अटेंड की गई हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। एंड पर कैपिटा इनकम तो हमने भी डिस्कस कर लिया। ओके, अभी कार्तिक यहाँ से पढ़े आप, फॉर फ्रॉम कंपैरेटिव टेबल्स अबव। Yes, sir. From comparative table above, various aspects of development can be concluded as follows. Per capita income is higher in Haryana and lower in Bihar. That indicates employment status and the so scope of earning in quantity less in Bihar. इज क्वाइट लेस इन बिहार, बिहार में काफी कम है स्कोप अर्निंग का। ओके, So infant mortality rate (IMR) is lowest in Kerala and highest in Bihar. Highest IMR implies that healthcare facilities poor and health per capita एंड income हाई पर कैपिटा does इनकम, not हाई पर कैपिटा इनकम high per capita income does not gra- गारंटी guarantee for better healthcare हेल्थ केयर facilities. फैसिलिटी। ओके स्टॉप, अभी रुक जाओ कार्तिक, अब मैं 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको अचिंत्य आप पढ़ेंगे। तो पहला बताया कि पर कैपिटा इनकम हरियाणा में ज्यादा है, बिहार में कम, तो चांसेस ऑफ अर्निंग एम्प्लॉयमेंट मनी इज मोर इन हरियाणा। ओके, आईएमआर जो है केरला में कम है, बिहार में सबसे ज्यादा है। हालांकि बिहार की जो वो है पर कैपिटा इनकम, वो केरला से ज्यादा थी, बट फिर भी मेडिकल फैसिलिटी कमजोर है उधर। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ हायर पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी वहां पे बाकी फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगी। नाउ लेट अस सी पॉइंट नंबर 20, अचिंत्य आप पढ़ें। Yes, sir. Infant mortality rate. या Infant mortality rate is lowest in Kerala and highest in Bihar. High IMR implies that healthcare facilities is poor and high per capita income does not. नहीं नहीं, यहाँ से पढ़ना, लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट यार, तो हमने पढ़ Lit- लिया ना। पॉइंट नंबर 20, literacy rate is highest in Kerala and lowest in Bihar. Net attendance ratio is highest in Kerala and lowest in Bihar. दोनों चीज रिलेटेड भी तो है ना। एक स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, वहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा होगा, एक स्कूल में कम जा रहे हैं, कम होगा। ओके प्लीज कंटिन्यू 22। Yes, sir. These aspects indicate that per capita income is not the best criteria to decide development. However, other basic facilities and quality of life also matter as much and must be properly counted to estimate proper development. ओके, चेक पॉइंट 1 के क्वेश्चन एक बार पढ़ दीजिए। The reason why development is contrasting and conflicting is that the people have different development dash
uh, opinions or Let perspective. have different goals. Goals. Okay. Point number two. What is the other term used for national income? GDP. कंटिन्यू करो क्वेश्चन, आंसर बाद में देखते रहेंगे. पढ़ दो, आप As क्वेश्चन पढ़ per दो. WDR, name a country that is ranked as low middle income country. इंडिया उसमें आ गया. हाँ, ओके. In a comparative analysis of Kerala, Haryana, and Bihar, which state seems to have higher income? इनकम तो हरियाणा एंड के बिहार. ओके. ये मैंने समझा दिया. इन्फेंट IMR तुम्हें समझा दिया. लेटेस्ट डेट नेट अटेंडेंस रेशियो. ओके. कंटिन्यू करें आप चिंता. पब्लिक फैसिलिटीज. Public facilities. या. More income can buy more facilities, but there are other things needed to live well, such वेल. as clean air, pollution-free environment, अनएडल्टरेटेड मेडिसिन. unadulterated अडल्टरेटेड का मतलब होता है जिसमें medicine. जिसमें किसी ने कोई मिलावट कर रखी हो. मिलावट मेडिसिन में कर देते हैं लोग. मिलावट कर देते हैं. दूध में करते हैं, घी में करते हैं. अनएडल्टरेटेड मेडिसिन. ओके. Public facilities are provide protection from infectious diseases, etc. ओके. Public facilities are provided by the government for betterment of the community of or for a collective benefit. States where adequate public facilities are provided have more progress. Due to good basic health and educational facilities, Kerala has low लो infant mortality rate एंड हाई and high लिटरेसी. literacy rate. ओके. एक पॉइंट मैं भी समझा देता हूं तुम्हें. दैट पॉइंट इज पीडीएस. व्हाट इज पीडीएस? पीडीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो गवर्नमेंट क्या करती है? सर स्क्रीन शेयर. ओके, थैंक यू. पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो इसको राशन की दुकान भी बोलते हैं, राशन शॉप. गवर्नमेंट क्या करती है? गरीबों को देख के उनके जो भी इनकम का प्रूफ आता है, राशन शॉप उसके हिसाब से क्या करती है? एवरी मंथ से अराउंड 5 kg wheat, 5 kg rice, some dal are provided to the poor at a very low rate. अच्छा, तुम बोलोगे सर ये कैसे काम करता है? तो बेसिकली होता क्या है, जो फार्मर, अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, गवर्नमेंट क्या करती है? राइस और वीट खरीदती है फार्मर से. उनको एक रेट दे देती है. जैसे 18 रुपीज kg का रेट का वीट का देगी पर केजी. लेकिन राशन की दुकान पे वो बिकेगा 8 रुपीज का. गवर्नमेंट अब 10 रुपए अपनी पॉकेट से देती है उसमें. ये दिस कॉल्ड पीडीएस सिस्टम. उसमें अलग अलग लेवल के वो होते हैं, राशन कार्ड बनते हैं. जो बिल्कुल गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी, बीपीएल बोलते हैं उनको. बिलो पॉवर्टी लाइन की अलग बनता है, अबव पॉवर्टी लाइन का अलग बनता है. ओके. सात्विक, आप कंटिन्यू करें पॉइंट नंबर 27 से. सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए. हो गया? Yes, sir. In states where there is good public distribution system, the health and nutritional status of people is better. Scroll कर दीजिए. हाँ, ओके. इससे पहले कि मैं स्क्रॉल करूँ, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा दो तुम्हें. ये हेल्थ 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 पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है. इसको बोलते हैं हम लोग बीएमआई. सो आई एम श्योर यू गाइस नो व्हाट इज बीएमआई. BMI stands for body mass index. Yes, sir. Body mass index. Sir, weight upon height squared. हाँ बिल्कुल. BMI is equal to weight बंदे का in kg, weight in kg upon height in meter का square. So if you have a BMI of below 23, you are underweight. नहीं sir, If below you have 19. Sir, below 19 to 19 है. 19 to 24 is the good spectrum. Okay.
देन फिर अप टू 24 इज ओके, मोर देन 24 यू आर ओवरवेट, एंड मोर देन 27 यू आर ओबीज, मतलब बहुत ज्यादा मोटे हो फिर तुम, इतना तो होना चाहिए। आज में थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, क्योंकि क्या होता है, जो जैसे बॉडी बिल्डर बंदे हैं, बॉक्सर बुक्सर बंदे हैं, इन लोगों की मसल का मास बहुत ज्यादा होता है, जिम वगैरह करते हैं, तो वो एक्चुअली उनका बीएमआई हो सकता है ज्यादा हो जाए, लेकिन वो ओबीज नहीं होंगे, ना उनको ओवरवेट बोल सकते, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। या फिर जैसे कुछ लोग हैं, जैसे हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उनकी जो बोन मास होता है बहुत ज्यादा होता है, तो ये नेशनल एवरेज पे बेस्ड है, तो थोड़ा बहुत अप डाउन उसमें चलता है। ओके, सात्विक, बीएमआई। Body mass index. Body mass index is an international standard used to determine whether an adult person is अंडर undernourished नरिश्ड और नॉट? or not. If we divide the weight of a person by the square of his her height, we get a ratio which is called a BMI. The BMI is an important way to understand the level of nutrition a person takes. BMI equals to weight in kg upon height in meter square. For हाइड्रीमीटर, example, हाइड्रीमीटर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, yes, फॉर एग्जांपल। For example, if a girl student is 14 years and 8 months old and the BMI is 15.2, then she is undernourished. Similarly, if the BMI of a boy aged 15 years and 6 months is 28, then he is overweight. लेट अस रीड व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये यूनाइटेड Human नेशन निकालता है। हाँ। Human Development Report published by UNDP, United Nations Development Programme, is one of the best methods to measure development. The report compares countries based on the three criteria, क्राइटेरिया, नेमली। namely living standard, per capita income, health status, life expectancy, educational levels of the people, literacy rate, and years of schooling. तो नेट अटेंडेंस आ गया, और उसके अंदर वो आ गया लिटरेसी रेट। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने डिस्कस नहीं किया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है क्या इस देश के मेल कितनी उम्र तक जीते हैं एवरेज, और वुमेन कितनी एज तक जीते हैं। तो हमारे देश में आज मेल की शायद 65 है, फीमेल की शायद 70 के पास पास है। फीमेल जनरली हैव ए लार्जर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छे कंट्रीज जहाँ डेवलपमेंट अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। और जो कंट्री है सोमालिया वोमालिया टाइप के कंट्री, जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। ओके, आप ही कंटिन्यू करें, साथ ही खत्म कर दे चैप्टर को, आज हम हो जाएगा एक चैप्टर एक। India occupies 129th rank in HDI 2019. The Human Development Index considers public health, education, poverty level, inequality, and environmental aspects to measure human development. ओके, Sustainability of सस्टेनेबिलिटी ऑफ development. डेवलपमेंट, या। Another aspect of development is that rapid development is using up natural resources at a faster rate. This is not sustainable for future generations. Non renewable resources are getting exhausted fast. These resources cannot be replenished and there is a fixed stock only. ओनली, ओके, एक मिनट होल्ड Renewable करना, एक मिनट होल्ड करना साथ में। गाइस, एनीबॉडी हु हैज नॉट read or who do not read, feel that he not read adequately, तो ऐसा है जिसने कम पढ़ा हो। प्रथम, आपने पढ़ लिया? यस सर, मैंने पढ़ लिया। ओके, तो सात्विक को ही कंटिन्यू कराते हैं। सात्विक आप कंटिन्यू करें, तो हम इस चैप्टर खत्म करें, देखें टाइम होगा तो screen एक दो share कर क्वेश्चन। दीजिए. या, ओके, गो अहेड। Renewable resources like groundwater is overused. It happens when groundwater is used more than what it replenished by rain. Sustainable development is a way to reduce this overuse. दिस सीरीज तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी दो पॉइंट मैं बता दूं आपको। एक होता है कि रेन रेन पड़ी आपकी छत पे, आपने पानी को एक जगह इकट्ठा कर लिया टैंक के अंदर, उसको आप यूज कर रहे हैं, बाद में इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, साफ सफाई के लिए यूज कर रहे हैं, किस किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज वन। एंड सेकेंडली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एस्पेक्ट होता है कि आप रेन के पानी को बहने नहीं दे रहे, कैसे चैनलाइज करें कि वो जमीन के अंदर जा रहा है, लैंड के अंदर जा रहा है। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, मगरपट्टा सिटी में हम रहते थे, वहाँ पूरे पूरे सिटी का पानी ऐसा, उन्होंने स्लोपिंग ऐसी कर रखी थी पूरे सिटी की, तो पूरे सिटी का पानी बीच में एक लेक थी उसकी तरफ आता था, और उस लेक की वजह से नीचे का जो ग्राउंड वाटर था वो चार्ज अप होता रहता था बार बार। सो गवर्नमेंट अब काम कर रही है इस पे। मेरे ख्याल से जो नए बिल्डिंग लॉज हैं उसके अंदर ये नेसेसरी है दैट एवरी कंस्ट्रक्शन कंपनी
हाउस कंस्ट्रक्शन कंपनी विल इंश्योर दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मैंडेटरी इन द सोसाइटी, पहली बात। और दूसरी बात, सोलर पैनल्स हैव टू बी यूज फॉर वाटर हीटिंग। गवर्नमेंट इस पे पॉलिसी इशू करती रहती है। या कंटिन्यू प्लीज, सम एग्जांपल्स शो। Some examples that show overuse of resources are groundwater in India. In India, nearly one third of the country is overusing its groundwater reserves. It is particularly found in agriculturally prosperous regions of Punjab, Western Uttar Pradesh, Hard Rock Plateau areas of Central and South India. होता क्या है, पंजाब के अंदर गन्ने की खेती हो रही है, हरियाणा में हो रही है, वेस्टर्न यूपी में हो रही है। गन्ने की खेती में शुगर केन क्रॉप के अंदर वाटर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, बहुत पानी देना पड़ता है, नहीं तो आपका वो शुगर केन ऐसा मरा सा निकलेगा। तो फार्मर क्या करते हैं, वो ट्यूबवेल खोद देते हैं और ट्यूबवेल चला चला के नीचे का पूरा पानी निकालते रहते हैं। वाटर टेबल कीप्स ऑन गोइंग डाउन। ओके, रीड पॉइंट नंबर 37। Exhaustion of natural resources. According to World Energy Review, June 2018, the total reserves of the crude oil stock in the world is going to the last just for 50 years as countries are fast using up the oil reserves. The whole world is facing environmental degradation as it is not confined to any nation or state boundary. Scientists, economists, philosophers, and social scientists are working together to find way of sustainable development. ओके, इसके इस बारे में मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये जितने भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है ना, फ्रांस, यूके, जर्मनी, अमेरिका, जापान, जब हम लोग कुछ भी नहीं थे, इंडिया जैसे कंट्री तो इंडिपेंडेंट सी नहीं मिली थी, तब से फॉर लास्ट अराउंड 150 ईयर दीस गाइस हैव बीन पंपिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। इन्होंने अपनी ग्रोथ की, इन्होंने, और अपनी ग्रोथ करने के बाद दीस गाइस स्टार्टेड सेइंग नाउ कि भैया हम तो फैक्ट्रियां बंद करो। हेलो मनोज, अच्छा ठीक है, 2 मिनट भेज रहा हूँ, दो। तो अभी क्या कह रहे हैं कि इंडिया कहता है भाई हमें फैक्ट्री लगानी, बोले नहीं 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 नहीं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रखा है यार, तुम कहाँ लगा रहे हो मोदी फैक्ट्री। अब वो बात तो उनकी सही भी है, गलत भी है, बट डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं कि हमें इतना मत करो ना, आप लोगों ने भी तो यूज किया है रिसोर्सेज को, इतना पोल्यूशन किया है, हमें तो उस पर बड़ी बहस चलती रहती। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था एक, वहां से कहानी चली थी। अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली जो कैलिफोर्निया में इतना भयंकर हीट वेव आई और सब जगह बहुत बहुत वेदर मचा हुआ है। तो अभी पीपल आर वेकिंग अप टू दिस, तो शायद से वो फर्क पड़ेगा उसका। क्योंकि क्या होता है, जब नेचुरल रिसोर्सेज का आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, दो फर्क पड़ रहा है। पहली बात तो उसका स्टॉक कम हो रहा है, फर्स्टली, एंड सेकेंडली उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, उसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अचिंत्य, ये मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पहले ही पढ़वाए थे, ये क्वेश्चन भी आप एक बार पढ़ के बता दो, चेक पॉइंट 2 के। तो कंपेयर, Yes, sir. Am I audible? yeah, go ahead. First, to compare nutritional level, dash is used. BMI. Okay. Second, Which position was occupied by India in terms of HDI in Human Development Report in 2018? I think 129 लिखा था, पर रिपोर्ट वो 2019 की मेंशन की इन्होंने। Anyway, ये तो नॉर्मल चीज है। ओके, नेक्स्ट। Identify the term that refers to reducing the use of natural resources with the aim to save for the फॉर द future. सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, Which states or regions are fast depleting their groundwater ग्राउंड वाटर रिजर्व। reserves? हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। यही वो लोग हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं सिंगू बॉर्डर पे, कि भैया हमारा किसान के काले कानून हटाओ। वो कानून काले हैं नहीं है, कभी बाद में बात करेंगे इस बारे में। ओके, चलो दोस्तों, इसके साथ ही हमारे चैप्टर खत्म हो गया। इसके नोट्स पूछ पढ़ लेना, मैं देखता हूँ अगर और नोट्स होंगे मैं तुमसे तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो, मैं शेयर कर ही देता, नहीं तो बाद में मैं भूल जाता हूँ फिर। वेट 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 वेट। ओके, या यस, 10th क्लास 10th SST Eco चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 अपने पास ओसवाल है, बहुत अच्छा। ओसवाल है, अरिहंत है, और एडुकाट। एडुकाट का क्वेश्चन बैंक भी है, जो लेटेस्ट टर्म वाइज मैंने दिखाया था तुम्हें बुक्स में, वो भी है। चलो भैया, अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको, राजवर्धन एंड पार्टी एवरीवन, एंड मे बी वन ऑफ दीज डेज आई विल हैव
kind of a quiz on Yes, this. sir. Okay, chalo. I put it in the WhatsApp. Right then. See you tomorrow, guys. We'll start with another chapter, agriculture. Bye bye. See you tomorrow. Bye, sir. Bye bye. Thank Bye, you. Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye bye. Bye.